نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کا فیصلہ جلد سنانے کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے فیصلے میں کہا اسپیشل جج سینٹرل پالیسی مینڈیٹ کے مطابق ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پی بی 14 میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد، سپریم کورٹ نے نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی برقرار رکھی، 7 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی کو مینار پاکستان پر 21 سپتمبر کو جلسے کی اجازت ملے گی یا نہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت آج ہوگی، جسٹس فاروق حیدر سماعت کریں گے۔ زین قریشی اور دیگر اراکین اسمبلی کی گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ وزارت داخلہ، چیف کمشنرز، آئی جی اسلام آباد، پولیس اور سیکرٹری قومی اسمبلی سے جواب طلب۔ جوڈیشل پیکیج عام آدمی کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی ایک کوشش ہے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کا مسودہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو فراہم کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کہتے ہیں وکلاء کی تجاویز پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھوں گا۔ وکلاء نمائندوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون نے مجوزہ ترمیم سے متعلق وکلاء رہنماؤں کو اعتماد میں لیا۔ وکلاء تنظیموں کے اجلاس میں قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ قرارداد کے مطابق آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، ترمیم آئین سے متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا مجوزہ مسودہ یکسر مسترد کر دیا۔ سربراہ جے یو آئی کی اپوزیشن رہنماؤں کے ظہرانے میں شرکت، مولانا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا آئینی ترامیم کا مسودہ کسی صورت قابل قبول ہے نہ ہی قابل عمل۔ اس مسودے کا ساتھ دیتے تو یہ ملک و قوم کی امانت میں خیانت ہوتی۔ اب تو حکومت بھی کہہ رہی ہے ہمارا کوئی مسودہ تھا ہی نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے تمام افواہوں کو رد کر دیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں آئینی ترامیم کا زیر گردش مبینہ مسودہ اصل نہیں۔ پیپلز پارٹی مجوزہ آئینی ترامیم میں آئینی عدالتوں کے قیام کا حق ہے، فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کرتے۔ آرٹیکل 63A کے فیصلے نے اراکین کو مرضی کا ووٹ دینے کے حق سے محروم کی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد رپورٹ کرنے کا حکم۔ اے آئی جی فائنانس پنجاب محمد نوید کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور تعینات کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق انوش مسعود 9 مئی واقعات کی تفتیش کر رہی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہر شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے پی ایچ اے بنانے کا اعلان۔ مریم نواز سے ساہیوال ڈویژن کے اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ ساہیوال میں کارڈیولوجی بلاک جلد از جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ صوبے بھر میں روایتی میلے بحال کرنے کا حکم۔ ہر شہر میں انتظامیہ مقامی میلوں کی حوصلہ افزائی اور سہولت کاری کرے، وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا ورکنگ ویمن کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا منصوبہ۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو وفاقی اداروں کو بھی منصوبے میں شامل کرنے کا حکم۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں احکامات جاری کیے گئے۔ پنجاب حکومت کے محکموں میں 28,000 سے زائد ڈے کیئر سینٹرز موجود ہی نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی ابتدائی رپورٹ مرتب۔ منصوبے کے لیے درخواستوں کا سلسلہ جاری۔ قرض کے لیے پنجاب بھر سے 1,90,000 سے زائد افراد نے درخواستیں دی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا منصوبہ۔ پہلے مرحلے میں 8 پرائمری اسکولز کی نجکاری کا اشتہار جاری کر دیا گیا۔ اشتہار میں لڑکیوں کے 6 اور لڑکوں کے 2 سرکاری پرائمری اسکولز شامل ہیں۔
बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली का केस मुंतकिल करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ महफूज फैसला सुना चुके हैं। पीटीआई उम्मीदवारों शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। इस बारे में मजीद डिटेल जीशान सैयद हमारे साथ हैं। जीशान, क्या अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जो पाकिस्तान तहरीक इस्लामाबाद के तीनों उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और इलेक्शन कमीशन ने एक कानून पास किया था, ऑर्डिनेंस लाया गया था और फिर उसके बाद एक्ट भी पास हो गया कि रिटायर्ड जज जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। उसी ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 2 माह बाद महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए जो शकूर पराचा थे रिटायर्ड जज अपीलेट ट्रिब्यूनल, उनकी तैनाती कलअदम करार दे दी, जबकि मामला इलेक्शन कमीशन वापस भिजवा दिया गया, जो कि इससे पहले ये समाअत कर रहे थे अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। तो अब वो मामला जो है मजीद कठाई में पड़ गया क्योंकि हाई कोर्ट ने ये मामला भेज दिया इलेक्शन कमीशन को और अब इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि किस जज को जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट भी पास हो गया है। अब रिटायर्ड जज होंगे या इलेक्शन कमीशन के जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के मौजूदा जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो समाअत जारी रखेंगे। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवाया गया और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार थे, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने तैनाती चैलेंज की थी, जो कि अपनी ही दरख्वास्तों पे किसी हद तक तो कामयाब हो गए लेकिन अपना ही नुकसान जो है वो भी कर बैठे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जीशान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 100 इंडेक्स पहली बार 82,000 की सतह पर पहुंच चुका है। इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 82,000 की सतह पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर तारीख की पहुंच चुकी है और पहली बार 82,000 की सतह पर इस वक्त इंडेक्स पहुंचा हुआ है। काशिफ मुनीर हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स वो हमें देंगे। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज भी मार्केट ने जो है वो जबरदस्त तेजी देखी थी। 80,000 का नफ्सियाती गुज़श्ता रोज का आज 81 और फिर 82,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर मार्केट पहुंची है। मार्केट में आज 1503 पॉइंट का इजाफा हुआ है। मार्केट 82,000 की सतह को क्रॉस कर गई है। आज जो है मार्केट का जो बुलंद रहा है, हाई रहा है, वो 82,000 रहा है, जबकि जो आज का लो था वो 81,680 था। ये तक अभी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि मार्केट आज जो है बुलंद तरीन सतह पर ही बंद होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका काशिफ। एक और अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब हो चुकी है। इस मंसूबे के लिए दरखास्तों की वसूली भी जारी है। पंजाब भर से कर्ज के लिए 1,90,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात लाहौर से हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख से हम लेते हैं। इदरीस, बताइएगा सबसे पहले ये, जिनके पास अपने ज़ाती प्लॉट्स हैं उनको ये कर्ज मिलेगा? जी बिल्कुल, ये 15 लाख तक जो है कर्ज की सहूलत पंजाब हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही है। बेघर जो अफराद हैं और जिनके पास अपनी ज़मीन मौजूद है वो ये पंजाब हुकूमत से कर्ज हासिल करके अपना घर तामीर कर सकते हैं। ये अपनी छत अपना घर जो प्रोग्राम है इसके लिए इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। इस सिलसिले में इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अपनी छत अपना घर मनसूबे के लिए दरखास्तों का सिलसिला जारी है और कर्ज के लिए पंजाब भर से 1,90,000 से ज्यादा अफराद ने दरखास्तें दी हैं। चेयरमैन PATB का इस सिलसिले में ये कहना है और इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से तमाम रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। दफ्तर में आकर मुलाकात करने वाले अफराद का भी रोजाना की बुनियाद पर डाटा मुरतब किया जा रहा है। मजमूई तौर पर 70,000 अफराद को कर्ज दिया जाना है। 6500 अफराद की जो है कुरानंदाजी में उनके नाम आ चुके हैं। औसतन रोजाना 2500 जो अफराद हैं वो दफातर से मालूमात हासिल करते हैं और रोजाना 1,000 के करीब ये अपना घर अपनी छत जो प्रोग्राम है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जो है इसके सिलसिले में दरखास्तें जमा हो रही हैं। जी ठीक है इदरीस, हमें ये भी बताइएगा इंस्टॉलमेंट क्या होगी, किस तरह से प्लान मुरतब किया गया है हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में ये जो अपनी छत अपना घर जो प्रोजेक्ट है इसके 2 हिस्से बनाए गए हैं। एक इस सिलसिले में जो शहरी हैं उनको उनके प्लॉट के बदले कर्ज दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा मरहला है उसमें पंजाब हुकूमत जो है अपनी जाती मलकियती अराजी पर घर बनाकर शहरियों को देगी। इस सिलसिले में
कंसल्टेंट से तमाम तर जो है वो तजावीज़ भी मांग ली गई हैं। 5 इस सिलसिले में ऑप्शन से पंजाब हुकूमत के सामने है। सरकारी अराजी पर जो है ये तमाम तर घर जो है वो तामीर किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में भी जो है उनको टैक्सेस से इस्तिस्ना देते हुए प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में भी घर बनाने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो बड़े चंक्स हैं लैंड के, उन पर भी जो है इस सिलसिले में तजावीज़ मांगी गई हैं। और ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये जिस इस मरहले का आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत ये जो कर्ज दिया जा रहा है तमाम शहरियों के सिलसिले में, कुरानदाजी के बाद तमाम तर जो है जो अफराद हैं उनकी मुकम्मल तौर पर वेरिफिकेशन की जा रही है। और जिन अफराद ने अपनी जमीनों का जो है इस सिलसिले में रिकॉर्ड फ्राहम किया है दरखास्तों के साथ, कर्ज की दरखास्तें जो डीएम की तो इदरीस, वो जो दूसरा मरहला है जिसमें अपनी सरकारी जमीन पर घर बनाकर आसानी के साथ लोगों को दिए जाएंगे, इस बारे में ये मंसूबा कब तक इसका वजूद अमल में लाया जाएगा? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो पंजाब हुकूमत के आला अफसरान की हो चुकी हैं। इस सिलसिले में जो सेक्रेटरी हाउसिंग है उनकी सरबराही में भी जो है इस सिलसिले में मीटिंग्स हुई। इसके साथ साथ जो पंजाब की ये जो स्पेसिफिक एजेंसी है, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, उसके जो डीजी हैं उनकी भी सरबराही में मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब से भी पंजाब भर में मौजूद जो रियासती अराजी है उसका रिकॉर्ड मांगा गया था, जिस पर तमाम जो पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे भी तफसीलात मांगी गई थी। डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने इजलाह में जो सरकारी अराजी के बड़े कते हैं अराजी के, उनकी भी तफसीलात फराहम कर दी है। इसके साथ साथ जो है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी चूंकि पंजाब के तमाम तर शहरों में मौजूद है और वहां पर तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद होता है। इसके साथ साथ इसी सिलसिले में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को भी एंगेज करने का जो इस सिलसिले में ऑप्शन सामने आई है। ये मजमूई तौर पर 5 ऑप्शन हैं। कंसल्टेंट इन तमाम पर काम करके अपनी हतमी रिपोर्ट मुरतब करेगा, जिसके बाद पंजाब हुकूमत जो है शहरियों को बने हुए घर जो है फराहम करने के इस मंसूबे के दूसरे मरहले का आगाज करेगी।